نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین جہاد ہے ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا، اس کے ہم خلاف نہیں ہیں، یہ کریں آپ۔ بنگلہ دیش میں پبلک اٹھی نا حکومت کے خلاف، احتجاج کی، حکومت بدل دی، یہ کام پاکستان میں بھی کریں، 100 دفعہ کریں۔ حدیث میں جس بغاوت سے منع کیا گیا وہ ہے تلوار کی طاقت سے اسلحہ لے کے حکومت کے خلاف کھڑے ہونا۔ یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لڑنے کے لیے۔ حکومت کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے تو سوائے فساد کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، قتل و غارت ہوگا، اور بالفرض آپ کو کامیابی مل بھی گئی تو ملک کتنا کمزور ہو چکا ہوگا، اس کمزوری کا اسلام دشمن قوتیں فائدہ اٹھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین جہاد ہے ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا، اس کے ہم خلاف نہیں ہیں، یہ کریں آپ۔ بنگلہ دیش میں پبلک اٹھی نا حکومت کے خلاف، احتجاج کی، حکومت بدل دی، یہ کام پاکستان میں بھی کریں، 100 دفعہ کریں۔ حدیث میں جس بغاوت سے منع کیا گیا وہ ہے تلوار کی طاقت سے اسلحہ لے کے حکومت کے خلاف کھڑے ہونا۔ یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لڑنے کے لیے۔ حکومت کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے تو سوائے فساد کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، قتل و غارت ہوگا، اور بالفرض آپ کو کامیابی مل بھی گئی تو ملک کتنا کمزور ہو چکا ہوگا، اس کمزوری کا اسلام دشمن قوتیں فائدہ اٹھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین جہاد ہے ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا، اس کے ہم خلاف نہیں ہیں، یہ کریں آپ۔ بنگلہ دیش میں پبلک اٹھی نا حکومت کے خلاف، احتجاج کی، حکومت بدل دی، یہ کام پاکستان میں بھی کریں، 100 دفعہ کریں۔ حدیث میں جس بغاوت سے منع کیا گیا وہ ہے تلوار کی طاقت سے اسلحہ لے کے حکومت کے خلاف کھڑے ہونا۔ یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لڑنے کے لیے۔ حکومت کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے تو سوائے فساد کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، قتل و غارت ہوگا، اور بالفرض آپ کو کامیابی مل بھی گئی تو ملک کتنا کمزور ہو چکا ہوگا، اس کمزوری کا اسلام دشمن قوتیں فائدہ اٹھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین جہاد ہے ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا، اس کے ہم خلاف نہیں ہیں، یہ کریں آپ۔ بنگلہ دیش میں پبلک اٹھی نا حکومت کے خلاف، احتجاج کی، حکومت بدل دی، یہ کام پاکستان میں بھی کریں، 100 دفعہ کریں۔ حدیث میں جس بغاوت سے منع کیا گیا وہ ہے تلوار کی طاقت سے اسلحہ لے کے حکومت کے خلاف کھڑے ہونا۔ یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لڑنے کے لیے۔ حکومت کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے تو سوائے فساد کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، قتل و غارت ہوگا، اور بالفرض آپ کو کامیابی مل بھی گئی تو ملک کتنا کمزور ہو چکا ہوگا، اس کمزوری کا اسلام دشمن قوتیں فائدہ اٹھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین جہاد ہے ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا، اس کے ہم خلاف نہیں ہیں، یہ کریں آپ۔ بنگلہ دیش میں پبلک اٹھی نا حکومت کے خلاف، احتجاج کی، حکومت بدل دی، یہ کام پاکستان میں بھی کریں، 100 دفعہ کریں۔ حدیث میں جس بغاوت سے منع کیا گیا وہ ہے تلوار کی طاقت سے اسلحہ لے کے حکومت کے خلاف کھڑے ہونا۔ یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لڑنے کے لیے۔ حکومت کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے تو سوائے فساد کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، قتل و غارت ہوگا، اور بالفرض آپ کو کامیابی مل بھی گئی تو ملک کتنا کمزور ہو چکا ہوگا، اس کمزوری کا اسلام دشمن قوتیں فائدہ اٹھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین جہاد ہے ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا، اس کے ہم خلاف نہیں ہیں، یہ کریں آپ۔ بنگلہ دیش میں پبلک اٹھی نا حکومت کے خلاف، احتجاج کی، حکومت بدل دی، یہ کام پاکستان میں بھی کریں، 100 دفعہ کریں۔ حدیث میں جس بغاوت سے منع کیا گیا وہ ہے تلوار کی طاقت سے اسلحہ لے کے حکومت کے خلاف کھڑے ہونا۔ یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لڑنے کے لیے۔ حکومت کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے تو سوائے فساد کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، قتل و غارت ہوگا، اور بالفرض آپ کو کامیابی مل بھی گئی تو ملک کتنا کمزور ہو چکا ہوگا، اس کمزوری کا اسلام دشمن قوتیں فائدہ اٹھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین جہاد ہے ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا، اس کے ہم خلاف نہیں ہیں، یہ کریں آپ۔ بنگلہ دیش میں پبلک اٹھی نا حکومت کے خلاف، احتجاج کی، حکومت بدل دی، یہ کام پاکستان میں بھی کریں، 100 دفعہ کریں۔ حدیث میں جس بغاوت سے منع کیا گیا وہ ہے تلوار کی طاقت سے اسلحہ لے کے حکومت کے خلاف کھڑے ہونا۔ یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لڑنے کے لیے۔ حکومت کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے تو سوائے فساد کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، قتل و غارت ہوگا، اور بالفرض آپ کو کامیابی مل بھی گئی تو ملک کتنا کمزور ہو چکا ہوگا، اس کمزوری کا اسلام دشمن قوتیں فائدہ اٹھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین جہاد ہے ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا، اس کے ہم خلاف نہیں ہیں، یہ کریں آپ۔ بنگلہ دیش میں پبلک اٹھی نا حکومت کے خلاف، احتجاج کی، حکومت بدل دی، یہ کام پاکستان میں بھی کریں، 100 دفعہ کریں۔ حدیث میں جس بغاوت سے منع کیا گیا وہ ہے تلوار کی طاقت سے اسلحہ لے کے حکومت کے خلاف کھڑے ہونا۔ یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لڑنے کے لیے۔ حکومت کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے تو سوائے فساد کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، قتل و غارت ہوگا، اور بالفرض آپ کو کامیابی مل بھی گئی تو ملک کتنا کمزور ہو چکا ہوگا، اس کمزوری کا اسلام دشمن قوتیں فائدہ اٹھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین جہاد ہے ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا، اس کے ہم خلاف نہیں ہیں، یہ کریں آپ۔ بنگلہ دیش میں پبلک اٹھی نا حکومت کے خلاف، احتجاج کی، حکومت بدل دی، یہ کام پاکستان میں بھی کریں، 100 دفعہ کریں۔ حدیث میں جس بغاوت سے منع کیا گیا وہ ہے تلوار کی طاقت سے اسلحہ لے کے حکومت کے خلاف کھڑے ہونا۔ یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لڑنے کے لیے۔ حکومت کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے تو سوائے فساد کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، قتل و غارت ہوگا، اور بالفرض آپ کو کامیابی مل بھی گئی تو ملک کتنا کمزور ہو چکا ہوگا، اس کمزوری کا اسلام دشمن قوتیں فائدہ اٹھائیں۔
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन जिहाद है जालिम बादशाह के सामने कलिमाए हक कहना। इसके हम खिलाफ नहीं है, ये करें आप। बांग्लादेश में पब्लिक उठी ना हुकूमत के खिलाफ, एहतजाज की, हुकूमत बदल दी, ये काम आप पाकिस्तान में भी करें, 100 दफा करें। हदीस में जिस बगावत से मना किया गया वो है तलवार की ताकत से असलहा लेके हुकूमत के खिलाफ खड़े होना। ये इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है, क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं है लड़ने के लिए। हुकूमत के पास बहुत कुछ होता है, तो सिवाय फसाद के कुछ भी हासिल नहीं होगा, कत्ल गारत होगा, और बिलफर्ज आपको कामयाबी मिल भी गई तो मुल्क कितना कमजोर हो चुका होगा। इस कमजोरी का इस्लाम दुश्मन कुव्वतें फायदा उठाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन जिहाद है जालिम बादशाह के सामने कलिमाए हक कहना। इसके हम खिलाफ नहीं है, ये करें आप। बांग्लादेश में पब्लिक उठी ना हुकूमत के खिलाफ, एहतजाज की, हुकूमत बदल दी, ये काम आप पाकिस्तान में भी करें, 100 दफा करें। हदीस में जिस बगावत से मना किया गया वो है तलवार की ताकत से असलहा लेके हुकूमत के खिलाफ खड़े होना। ये इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है, क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं है लड़ने के लिए। हुकूमत के पास बहुत कुछ होता है, तो सिवाय फसाद के कुछ भी हासिल नहीं होगा, कत्ल गारत होगा, और बिलफर्ज आपको कामयाबी मिल भी गई तो मुल्क कितना कमजोर हो चुका होगा। इस कमजोरी का इस्लाम दुश्मन कुव्वतें फायदा उठाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन जिहाद है जालिम बादशाह के सामने कलिमाए हक कहना। इसके हम खिलाफ नहीं है, ये करें आप। बांग्लादेश में पब्लिक उठी ना हुकूमत के खिलाफ, एहतजाज की, हुकूमत बदल दी, ये काम आप पाकिस्तान में भी करें, 100 दफा करें। हदीस में जिस बगावत से मना किया गया वो है तलवार की ताकत से असलहा लेके हुकूमत के खिलाफ खड़े होना। ये इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है, क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं है लड़ने के लिए। हुकूमत के पास बहुत कुछ होता है, तो सिवाय फसाद के कुछ भी हासिल नहीं होगा, कत्ल गारत होगा, और बिलफर्ज आपको कामयाबी मिल भी गई तो मुल्क कितना कमजोर हो चुका होगा। इस कमजोरी का इस्लाम दुश्मन कुव्वतें फायदा उठाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन जिहाद है जालिम बादशाह के सामने कलिमाए हक कहना। इसके हम खिलाफ नहीं है, ये करें आप। बांग्लादेश में पब्लिक उठी ना हुकूमत के खिलाफ, एहतजाज की, हुकूमत बदल दी, ये काम आप पाकिस्तान में भी करें, 100 दफा करें। हदीस में जिस बगावत से मना किया गया वो है तलवार की ताकत से असलहा लेके हुकूमत के खिलाफ खड़े होना। ये इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है, क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं है लड़ने के लिए। हुकूमत के पास बहुत कुछ होता है, तो सिवाय फसाद के कुछ भी हासिल नहीं होगा, कत्ल गारत होगा, और बिलफर्ज आपको कामयाबी मिल भी गई तो मुल्क कितना कमजोर हो चुका होगा। इस कमजोरी का इस्लाम दुश्मन कुव्वतें फायदा उठाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन जिहाद है जालिम बादशाह के सामने कलिमाए हक कहना। इसके हम खिलाफ नहीं है, ये करें आप। बांग्लादेश में पब्लिक उठी ना हुकूमत के खिलाफ, एहतजाज की, हुकूमत बदल दी, ये काम आप पाकिस्तान में भी करें, 100 दफा करें। हदीस में जिस बगावत से मना किया गया वो है तलवार की ताकत से असलहा लेके हुकूमत के खिलाफ खड़े होना। ये इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है, क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं है लड़ने के लिए। हुकूमत के पास बहुत कुछ होता है, तो सिवाय फसाद के कुछ भी हासिल नहीं होगा, कत्ल गारत होगा, और बिलफर्ज आपको कामयाबी मिल भी गई तो मुल्क कितना कमजोर हो चुका होगा। इस कमजोरी का इस्लाम दुश्मन कुव्वतें फायदा उठाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन जिहाद है जालिम बादशाह के सामने कलिमाए हक कहना। इसके हम खिलाफ नहीं है, ये करें आप। बांग्लादेश में पब्लिक उठी ना हुकूमत के खिलाफ, एहतजाज की, हुकूमत बदल दी, ये काम आप पाकिस्तान में भी करें, 100 दफा करें। हदीस में जिस बगावत से मना किया गया वो है तलवार की ताकत से असलहा लेके हुकूमत के खिलाफ खड़े होना। ये इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है, क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं है लड़ने के लिए। हुकूमत के पास बहुत कुछ होता है, तो सिवाय फसाद के कुछ भी हासिल नहीं होगा, कत्ल गारत होगा, और बिलफर्ज आपको कामयाबी मिल भी गई तो मुल्क कितना कमजोर हो चुका होगा। इस कमजोरी का इस्लाम दुश्मन कुव्वतें फायदा उठाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन जिहाद है जालिम बादशाह के सामने कलिमाए हक कहना। इसके हम खिलाफ नहीं है, ये करें आप। बांग्लादेश में पब्लिक उठी ना हुकूमत के खिलाफ, एहतजाज की, हुकूमत बदल दी, ये काम आप पाकिस्तान में भी करें, 100 दफा करें। हदीस में जिस बगावत से मना किया गया वो है तलवार की ताकत से असलहा लेके हुकूमत के खिलाफ खड़े होना। ये इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है, क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं है लड़ने के लिए। हुकूमत के पास बहुत कुछ होता है, तो सिवाय फसाद के कुछ भी हासिल नहीं होगा, कत्ल गारत होगा, और बिलफर्ज आपको कामयाबी मिल भी गई तो मुल्क कितना कमजोर हो चुका होगा। इस कमजोरी का इस्लाम दुश्मन कुव्वतें फायदा उठाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन जिहाद है जालिम बादशाह के सामने कलिमाए हक कहना। इसके हम खिलाफ नहीं है, ये करें आप। बांग्लादेश में पब्लिक उठी ना हुकूमत के खिलाफ, एहतजाज की, हुकूमत बदल दी, ये काम आप पाकिस्तान में भी करें, 100 दफा करें। हदीस में जिस बगावत से मना किया गया वो है तलवार की ताकत से असलहा लेके हुकूमत के खिलाफ खड़े होना। ये इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है, क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं है लड़ने के लिए। हुकूमत के पास बहुत कुछ होता है, तो सिवाय फसाद के कुछ भी हासिल नहीं होगा, कत्ल गारत होगा, और बिलफर्ज आपको कामयाबी मिल भी गई तो मुल्क कितना कमजोर हो चुका होगा। इस कमजोरी का इस्लाम दुश्मन कुव्वतें फायदा उठाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन जिहाद है जालिम बादशाह के सामने कलिमाए हक कहना। इसके हम खिलाफ नहीं है, ये करें आप। बांग्लादेश में पब्लिक उठी ना हुकूमत के खिलाफ, एहतजाज की, हुकूमत बदल दी, ये काम आप पाकिस्तान में भी करें, 100 दफा करें। हदीस में जिस बगावत से मना किया गया वो है तलवार की ताकत से असलहा लेके हुकूमत के खिलाफ खड़े होना। ये इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है, क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं है लड़ने के लिए। हुकूमत के पास बहुत कुछ होता है, तो सिवाय फसाद के कुछ भी हासिल नहीं होगा, कत्ल गारत होगा, और बिलफर्ज आपको कामयाबी मिल भी गई
तो मुल्क इतना कमजोर हो चुका होगा, इस कमजोरी का इस्लाम दुश्मन कुव्वतें फायदा उठाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन जिहाद है जालिम बादशाह के सामने कलिमाए हक कहना, इसके हम खिलाफ नहीं है, ये करें आप। बांग्लादेश में पब्लिक उठी ना हुकूमत के खिलाफ, एहतजाज की, हुकूमत बदल दी, ये काम आप पाकिस्तान में भी करें, 100 दफा करें। हदीस में जिस बगावत से मना किया गया वो है तलवार की ताकत से असलहा लेके हुकूमत के खिलाफ खड़े होना। ये इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है, क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं है लड़ने के लिए। हुकूमत के पास बहुत कुछ होता है, तो सिवाय फसाद के कुछ भी हासिल नहीं होगा, कत्ल गारत होगा, और बिलफर्ज आपको कामयाबी मिल भी गई। तो मुल्क इतना कमजोर हो चुका होगा, इस कमजोरी का इस्लाम दुश्मन कुव्वतें फायदा उठाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन जिहाद है जालिम बादशाह के सामने कलिमाए हक कहना, इसके हम खिलाफ नहीं है, ये करें आप। बांग्लादेश में पब्लिक उठी ना हुकूमत के खिलाफ, एहतजाज की, हुकूमत बदल दी, ये काम आप पाकिस्तान में भी करें, 100 दफा करें। हदीस में जिस बगावत से मना किया गया वो है तलवार की ताकत से असलहा लेके हुकूमत के खिलाफ खड़े होना। ये इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है, क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं है लड़ने के लिए। हुकूमत के पास बहुत कुछ होता है, तो सिवाय फसाद के कुछ भी हासिल नहीं होगा, कत्ल गारत होगा, और बिलफर्ज आपको कामयाबी मिल भी गई। तो मुल्क इतना कमजोर हो चुका होगा, इस कमजोरी का इस्लाम दुश्मन कुव्वतें फायदा उठाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन जिहाद है जालिम बादशाह के सामने कलिमाए हक कहना, इसके हम खिलाफ नहीं है, ये करें आप। बांग्लादेश में पब्लिक उठी ना हुकूमत के खिलाफ, एहतजाज की, हुकूमत बदल दी, ये काम आप पाकिस्तान में भी करें, 100 दफा करें। हदीस में जिस बगावत से मना किया गया वो है तलवार की ताकत से असलहा लेके हुकूमत के खिलाफ खड़े होना। ये इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है, क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं है लड़ने के लिए। हुकूमत के पास बहुत कुछ होता है, तो सिवाय फसाद के कुछ भी हासिल नहीं होगा, कत्ल गारत होगा, और बिलफर्ज आपको कामयाबी मिल भी गई। तो मुल्क इतना कमजोर हो चुका होगा, इस कमजोरी का इस्लाम दुश्मन कुव्वतें फायदा उठाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन जिहाद है जालिम बादशाह के सामने कलिमाए हक कहना, इसके हम खिलाफ नहीं है, ये करें आप। बांग्लादेश में पब्लिक उठी ना हुकूमत के खिलाफ, एहतजाज की, हुकूमत बदल दी, ये काम आप पाकिस्तान में भी करें, 100 दफा करें। हदीस में जिस बगावत से मना किया गया वो है तलवार की ताकत से असलहा लेके हुकूमत के खिलाफ खड़े होना। ये इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है, क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं है लड़ने के लिए। हुकूमत के पास बहुत कुछ होता है, तो सिवाय फसाद के कुछ भी हासिल नहीं होगा, कत्ल गारत होगा, और बिलफर्ज आपको कामयाबी मिल भी गई। तो मुल्क इतना कमजोर हो चुका होगा, इस कमजोरी का इस्लाम दुश्मन कुव्वतें फायदा उठाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन जिहाद है जालिम बादशाह के सामने कलिमाए हक कहना, इसके हम खिलाफ नहीं है, ये करें आप। बांग्लादेश में पब्लिक उठी ना हुकूमत के खिलाफ, एहतजाज की, हुकूमत बदल दी, ये काम आप पाकिस्तान में भी करें, 100 दफा करें। हदीस में जिस बगावत से मना किया गया वो है तलवार की ताकत से असलहा लेके हुकूमत के खिलाफ खड़े होना। ये इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है, क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं है लड़ने के लिए। हुकूमत के पास बहुत कुछ होता है, तो सिवाय फसाद के कुछ भी हासिल नहीं होगा, कत्ल गारत होगा, और बिलफर्ज आपको कामयाबी मिल भी गई। तो मुल्क इतना कमजोर हो चुका होगा, इस कमजोरी का इस्लाम दुश्मन कुव्वतें फायदा उठाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन जिहाद है जालिम बादशाह के सामने कलिमाए हक कहना, इसके हम खिलाफ नहीं है, ये करें आप। बांग्लादेश में पब्लिक उठी ना हुकूमत के खिलाफ, एहतजाज की, हुकूमत बदल दी, ये काम आप पाकिस्तान में भी करें, 100 दफा करें। हदीस में जिस बगावत से मना किया गया वो है तलवार की ताकत से असलहा लेके हुकूमत के खिलाफ खड़े होना। ये इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है, क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं है लड़ने के लिए। हुकूमत के पास बहुत कुछ होता है, तो सिवाय फसाद के कुछ भी हासिल नहीं होगा, कत्ल गारत होगा, और बिलफर्ज आपको कामयाबी मिल भी गई। तो मुल्क इतना कमजोर हो चुका होगा, इस कमजोरी का इस्लाम दुश्मन कुव्वतें फायदा उठाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन जिहाद है जालिम बादशाह के सामने कलिमाए हक कहना, इसके हम खिलाफ नहीं है, ये करें आप। बांग्लादेश में पब्लिक उठी ना हुकूमत के खिलाफ, एहतजाज की, हुकूमत बदल दी, ये काम आप पाकिस्तान में भी करें, 100 दफा करें। हदीस में जिस बगावत से मना किया गया वो है तलवार की ताकत से असलहा लेके हुकूमत के खिलाफ खड़े होना। ये इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है, क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं है लड़ने के लिए। हुकूमत के पास बहुत कुछ होता है, तो सिवाय फसाद के कुछ भी हासिल नहीं होगा, कत्ल गारत होगा, और बिलफर्ज आपको कामयाबी मिल भी गई। तो मुल्क इतना कमजोर हो चुका होगा, इस कमजोरी का इस्लाम दुश्मन कुव्वतें फायदा उठाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन जिहाद है जालिम बादशाह के सामने कलिमाए हक कहना, इसके हम खिलाफ नहीं है, ये करें आप। बांग्लादेश में पब्लिक उठी ना हुकूमत के खिलाफ, एहतजाज की, हुकूमत बदल दी, ये काम आप पाकिस्तान में भी करें, 100 दफा करें। हदीस में जिस बगावत से मना किया गया वो है तलवार की ताकत से असलहा लेके हुकूमत के खिलाफ खड़े होना। ये इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है, क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं है लड़ने के लिए। हुकूमत के पास बहुत कुछ होता है, तो सिवाय फसाद के कुछ भी हासिल नहीं होगा, कत्ल गारत होगा, और बिलफर्ज आपको कामयाबी मिल भी गई। तो मुल्क इतना कमजोर हो चुका होगा, इस कमजोरी का इस्लाम दुश्मन कुव्वतें फायदा उठाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन जिहाद है जालिम बादशाह के सामने कलिमाए हक कहना, इसके हम खिलाफ नहीं है, ये करें आप। बांग्लादेश में पब्लिक उठी ना हुकूमत के खिलाफ, एहतजाज की, हुकूमत बदल दी, ये काम आप पाकिस्तान में भी करें, 100 दफा करें। हदीस में जिस बगावत से मना किया गया वो है तलवार की ताकत से असलहा लेके हुकूमत के खिलाफ खड़े होना। ये इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है, क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं है लड़ने के लिए। हुकूमत के पास बहुत कुछ होता है, तो सिवाय फसाद के कुछ भी हासिल नहीं होगा, कत्ल गारत होगा,